اس وقت پیپلز پارٹی کو شرم نہیں آئی، تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آ سکتی، آپ مسلسل جھوٹ بولتے ہیں، جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ پاکستان کو خراب کرتے ہیں، آپ پاکستان کے اداروں کو خراب کرتے ہیں، آپ جمہوریت کو بدنام کرتے ہیں، آپ کو موقع ملنا ہی نہیں آپ خود بھی پارلیمنٹیرین ہیں اور قانون سازی میں آپ کا بڑا کردار ہے، میرا خیال ہے بولنا چاہیے جن لوگوں نے قانون آئین بنایا ہے بالکل ان کی بھی وہ ایک ہوتی ہے، اور جب تک پارلیمنٹیرینز اکٹھے نہیں ہوں گے، میں یہ سوال جج صاحب ہم نہیں ہوں گے پارلیمنٹیرینز اکٹھے، اگر یہ سپریم کورٹ کے ہاتھ پاؤں باندھیں، اگر یہ پارلیمنٹ کو عدلیہ کے خلاف شیلڈ بنانے کے لیے استعمال کریں، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اگر یہ جائز بات کریں گے ہم ان کا ساتھ ضرور دیں گے۔ دیکھیں اور بالکل جوڈیشری کا احترام کرتے ہوئے سید یوسف رضا گیلانی صاحب گھر گئے، ورنہ تو اس وقت بھی ایک محاضرہ ہی ہو سکتی تھی۔ آپ تاریخ پہ نظر ڈال لیں کون سے پرائم منسٹر ہیں جو جوڈیشری نے ڈسکوالیفائی کیا اور وہ گھر چلے گئے ہوں، اور میں سمجھتی ہوں اسی طرح رحمان ملک صاحب ڈی سیٹ ہوئے اور بہت سا جوڈیشری کا احترام کرتے ہوئے اور اس کا اوبے کرتے ہوئے آئی وڈ سے جوڈیشری کے ڈائریکٹیوز کو۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا نام اگر سعد رفیق صاحب نے لیا ہے تو ایسے لیڈر ہیں جن کو اکراس دا بورڈ ان کی عزت، ان کی کنٹریبیوشن کو جو ہے وہ میرے خیال میں کہ آج دوست دشمن سب مانتے ہیں، نہیں ہمارے لیڈر ہیں لیکن دوست دشمن، اسی طرح بی بی کی جو شہادت تھی، اسی طرح جو بی بی کی شہادت تھی وہ اس ملک کے لیے نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ملک کس نے توڑا، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، مگر چلیے میں یہ سوال آسما مجھے بھی تھوڑی اجازت دیں کہ ایک سوال میں پوچھ لوں کہ جوڈیشری پہ جوتیاں لے کے حملہ کس نے کیا؟ یہ تو مجھے سوال میرا بھی بنتا ہے نا کہ پھر میں پوچھوں ججز کو جوتیاں پکڑ کے اوپر چڑھ کے ڈائس پہ جا کے حملہ کیا وہ کس نے کیا تھا؟ وہ تو اس کا تو جواب صاف ظاہر ہے نا کس پارٹی نے کروایا اور کس نے کیا۔ تو آج جوڈیشری کی مگر میرا خیال ہے بلیم گیم سے نکل کے نکلنا چاہیے، بالکل جج صاحب یہ جو سیڈیز منگوائی، سیڈیز ابھی دیکھنی ہے ججز نے، اس سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ اپوزیشن کا کردار، یہ کیسے ایسے ہوتا ہے؟ ریمارکس سے دیے جاتے ہیں۔ اس میں ہوا کیا دیکھیں نا، گزارش یہ کہ وہاں پر ایک پوائنٹ یہ آرگو ہوا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے بددیانتی کی بنیاد پر بھی ہوا، تو اب بددیانتی کی جب بات ہوگی اور ہیس کی بات بھی ہوئی تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ اس میں میٹیریل پیش کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے شکور پراچا صاحب وکیل ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے اس کا ریکارڈ پیش کریں، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ اے کے ڈوگر صاحب جب پیش ہو رہے تھے تو انہوں نے جب اس بات کو ہائی لائٹ کیا تو پھر وہاں پر ایک وکیل صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ جو ہے اپنا چودھری نثار صاحب کی طرف سے پیش ہوں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ہم نے اپنے مزاحمت ڈیبیٹ بھی کی۔ تو اس حوالے سے یہ کیا ارلی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ججز کی طرف سے کہ اپوزیشن کے کردار کو کویسچن کیا انہوں نے اس لا کی؟ وہ اس حوالے سے ڈوگر صاحب جب بحث کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا، دیکھیں میں ذاتی طور پر بلیو کرتا ہوں کہ اصل میں ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے تھی پارلیمنٹ میں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پارلیمنٹ میں جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس میں تمام جو خرابیاں خود بخود دھل کے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، مگر بلڈوز کیا گیا نا، کہہ رہے بہت جلدی جو بھی دیکھیں اب میں اس کنٹروورسی میں تو نہیں جا رہا، یہ تو میں کوئی سیاسی ورکر تو نہیں ہوں، لیکن گزارش یہ کہ اصل جو فورم تھا وہ پارلیمنٹ تھا اور پارلیمنٹ ہی میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، وہاں پر ہوگی، اس کے علاوہ بالکل جو ہے آپ اتنا بوجھ بھی نہیں ڈالیں۔ افتخار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ بات سن رہے ہیں ساری کہ یہ توہین عدالت کا جو کیس ہے اس پہ کیا چیلنج کورٹ کر سکتی ہے اپوزیشن کے کردار کو کہ آپ نے مزاحمت نہیں کی؟ ہلو جی افتخار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں بھی کچھ بات درج کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پہ بہت کھل کے بات ہو رہی ہے کہ چیزوں کو ہیسٹ میں نہیں کرنا چاہیے، جلدی میں نہیں کرنا چاہیے، اور فلور آف دی ہاؤس پہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی اور وقت دینا چاہیے تھا، کیونکہ ایک پارٹی اس کو اپنے میں بچنے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو ہم آرٹیکل 19 کے تحت فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے بات سارے کر رہے ہیں، کیا یہ درست ہے جج صاحب؟ جی یہ وہ بات بھی ریلیونٹ ہے۔ تو جج صاحب یہ پھر فریڈم آف اسپیچ کے جب ہم بات کرتے ہیں اور جب اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بات آتی ہے تو کیا اس آرٹیکل میں صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ہی تعلق ہے؟ کیا اس میں یہ نہیں لکھا گیا ہوا کہ فرینڈلی ریلیشن ود دا فارن اسٹیٹس جو ہیں ان کو جو تباہ و برباد کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی ایکشن ہونا چاہیے؟ بالکل ہے، وہ بھی ہے۔ کیا اس آرٹیکل 19 میں یہ نہیں لکھا گیا، کیا اس پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں یہ نہیں لکھا گیا جو پبلک آرڈر کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور ان پہ بھی بات ہونی چاہیے؟ کیا آرٹیکل 19 میں یہ نہیں لکھا گیا ڈیسنسی اور مورالٹی کے کوئی وائلیشن جو کرتے ہیں اس پہ بھی بات ہونی چاہیے؟ جی
यही क्यों लिखा गया है कि सिर्फ और इन रिलेशन टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर ही यूं डिबेट हो रही है सारे मुल्क में? तो ये आपका मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन है विद आर्टिकल 19A जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाजत देता है. Is it true? No, I'm not saying it's a contradiction. I say the freedom of speech में की वायलेशन के हवाले से जहाँ पे अदलिया के को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात है कि अदलिया पे जब्त न पड़े, ये बहुत दुरुस्त बात है. लेकिन अदलिया पे जब्त न पड़ने के अलावा भी जो कुछ और बातें इस आर्टिकल का हिस्सा है ना, कि पाकिस्तान के दिफा के बारे में जो जिसके मुंह में आ रहा है यहाँ पे क्या कहता है, फिर उसमें ये भी है कि दोस्ताना खाजा तल्लुकात को तबाह बर्बाद न किया जाए. यहाँ पे तो गैर मुल्की परचमों को लोग जिस तरीके से रोनते हैं और जिस तरीके के नारे मारते हैं, और मगर इफ्तिखार साहब क्वेश्चन ये है इस वक्त जी आसमा सभा में पूरी बात सुने ना. जी देखिए ना, हम इस प्रोग्राम में ये डिबेट करने को तैयार नहीं और पार्लियामेंट में डिबेट की ख्वाहिश करते हैं. मैं कहता हूँ फिर इन अमूर को पार्लियामेंट में भी ज़ेर बहस लाना चाहिए कि क्या आइन के आर्टिकल जो सारे के सारे हैं वो सारे के सारे बाइज्जत है, या आइन के आर्टिकल का कोई हिस्सा बाइज्जत है और बाकी हिस्से बाइज्जत नहीं है. ठीक बात है, लेकिन आप मैं जैसा से पूछ रहा हूँ, खाए साहब से पूछ रहा हूँ, और ये जो खातून है मैंने इनसे पूछ रहा हूँ. यास्मीन रहमान साहब जी समझ रही हूँ कि बस ये आप ठीक कह रहे हैं कि सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि कुछ चीज़ों को हम आइन में से उठा लेते हैं और कुछ चीज़ों को आइन में से जो है उस पर हम अमल नहीं करते. तो गालिबन इफ्तिखार साहब का यही कहना है कि सिलेक्टिवली हम कुछ चीज़ें तो उठा लेते हैं और बाकी जो फॉरेन रिलेशंस हो या दूसरी चीज़ें हों तो उसमें फिर पार्लियामेंट का जो है उसमें क्या रोल होता है, या पार्लियामेंट में चीज़ें आनी चाहिए और डिबेट भी होनी चाहिए और उन पर रिजल्ट ओरिएंटेड डिबेट्स होनी चाहिए. लेकिन मेरा तो सवाल ये है साद रफीक साहब, साद भाई, कि ये जो आर्टिकल 19A है, फिर ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, तो फिर तौहीन अदालत का तो कानून ही नहीं होना चाहिए उसूलन, जो मेरे जहन में आ रही है बात. देखिए आसमा, बतौर एक सियासी कारकुन के, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही, बिल्कुल. बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के मेरी ज़ाती राय जो है वो हमेशा से ये है, या कॉन्स्टिट्यूशन के एक तालिब इल्म की हैसियत से, कि आर्टिकल 63 में जहाँ ये लिखा गया है कि आप फ़ौज और अदलिया के बारे में बात नहीं कर सकते पार्लियामेंट में, मैं ज़ाती तौर पर इसके साथ एग्री नहीं करता. लेकिन अगर हमें कोई तब्दीली करनी थी और हम समझते थे कि तौहीन अदालत का कानून ज़रूरत से ज़्यादा सख्त है, तो उसकी टाइमिंग देखनी चाहिए थी. जब आप 18वीं तरमीम कर रहे थे, जब अदालतों के साथ आप लड़ नहीं रहे थे इस तरीके से, खुली जंग नहीं आपने शुरू कर दी थी, आप एक कंसेंसस क्रिएट करते. लेकिन अगर आप कंसेंसस क्रिएट ना करें, अदालतों से ही लड़ें, उन्हीं की तस्दीक करें, वो सजाएं करें, आप अगले मिनट में उनको पार्डन कर दें, और उसके बाद अब मुझे बात करने दें मैं जरा प्लीज, और उसके बाद आप एक वजीर आजम और एक अपने फाइनेंसर मलिक रियाज साहब को बचाने के लिए रातों रात लेजिस्लेशन की कोशिश करें. आप ईवान के सामने 1 मिनट या 1.5 मिनट पहले 13 आर्टिकल्स का एक अमेंडेड मुसवदा रख के कहें कि अभी वोटिंग करेंगे. आप पार्लियामेंटी रवायत को पामाल करके उसे स्टैंडिंग कमेटी में हमारे जाने की डिमांड को आप बुलडोज कर दें. आप अपनी अददी बर्तरी की बुनियाद पर सारे रूल्स को बुलडोज करें और आपको चेयर की सपोर्ट हासिल हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका हदफ तौहीन अदालत के कानून की सख्ती नहीं बल्कि अदालत की आज़ादी को कैद करना है. अगर इसकी टाइमिंग ठीक होती. एक और बात, आप एक फैसला एक जुमला बोले, आप फैसला करने जा रहे हैं अदलिया के बारे में, आपको पता है कि आइन की तशरीह का हक भी अदलिया के पास है. आपने क्या जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उसको कॉन्फिडेंस में लिया, पार्लियामेंट के अंदर, सिविल सोसाइटी में, दानिश्वरों में आपने इस पर डिबेट करवाई. आपको तो जल्दी थी क्योंकि आपने अगले वजीर आजम के इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी करनी थी जो दरअसल दीवार नहीं है. ठीक है, अच्छा ये इस पे आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि कहीं भी ये प्रूव नहीं होता कि मौजूदा गवर्नमेंट ने अदलिया के साथ लड़ाई की हो. ये मैं वाज़िया तौर पे कहनी चाहती हूँ. कोई एक इंसिडेंट बता दें, जैसे फिर मुझे दोबारा कोट करना पड़ेगा, इनकी हुकूमत में 98 में रातों रात 12 बजे इजलास बुला के यह कानून किसको सेव करने के लिए प्रूफ किया गया, उस वक्त पास किया गया था? क्या किसी प्राइम मिनिस्टर को सेव करना था या किसी प्रेसिडेंट को? ये बात क्यों बार बार ये कीजिए, जो खुद जो देखिए जब चीजों को मत आप नहीं वो यकीनन मैं नहीं करना चाह रही, नहीं इफ्तिखार साहब मैं नहीं करना चाह रही थी, लेकिन वो अच्छी नहीं है तो पीपल्स पार्टी को तो नहीं उसको फॉलो. जब पीपल्स पार्टी वो चीजें करे तो वो अच्छी नहीं है, जब कोई और पार्टी वो चीजें करे तो वो बहुत अच्छी चीजें होती हैं. उस वक्त जब वो दूसरी पार्टी ज़माने जाहिलियत, डेमोक्रेसी हुआ इसीलिए, ज़माने जाहिलियत की बात, हमने गलती की थी, आइंदा नहीं करेंगे. आगे की बात जमाना जाहिलियत तो वो अब जूतियां लेके जजिस के डाइस पे चढ़ जाएंगे. नहीं है प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया,
आपसे मैं तवक्को नहीं करता, मुझे आप पर्सनल करने की कोशिश कर रही हैं। कोई चुटिया लेके नहीं चढ़ा, गलत बयानी तो नहीं करनी चाहिए ना। ऐसी कोई लड़ाई नहीं है पार्टी का मतलब ये थोड़ी है कि पार्टी मतलब बना लिया जाए। आज भी अच्छे माहौल में मतलब समझ लेते हैं, आइंदा भी अच्छे माहौल में जुडिशरी के साथ बात होगी और रिस्पेक्ट की गई, और इसीलिए यूसुफ रजा गिलानी साहब को घर भेजा गया, सिर्फ जुडिशरी के हुक्म पे भेजा। अच्छा चलिए, अच्छा जैसा अब ये जो बातें सारी हो रही हैं, आपको लगता है कि काबिल कबूल हल की तरफ हुकूमत आ जाएगी? खत तो वो नहीं लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? इलेक्शन कराएंगे, कमीशन बनाएंगे, क्या करेंगे? वो क्या हो सकता है? देखिए बीबी, बात यह है कि सबको बहुत जिम्मेदारी के साथ चलना पड़ेगा। मैंने पहले इशारतन कहा, मैंने खुल कर कहा हूँ, खुदा न खास्ता अगर वो बात होगी जो हम बिल्कुल नहीं चाहते, तो ये सबको याद रखना चाहिए कि हिस्टोरियन बड़ा जालिम होगा। ये मत समझे कि हिस्टोरियन सिर्फ ये लिखेगा कि सारा कसूर तारिक महमूद का था और आसमा बिल्कुल फरिश्ता थी। तो देखें, सब इन अ वे स्टेक होल्डर, तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, स्टेक होल्डर जो है जुडिशरी इन अ वे उस हिसाब से स्टेक होल्डर हो नहीं सकती। ये आफ्टर ऑल आइन है, आइन में तमाम इदारों का अपना एक रोल है, उसी में आप रहेंगे। 19, 20, 18, 20 तो चलता रहता है। तो आपको लगता है कि आज जुडिशियल कंस्ट्रेंट का मुजाहरा बिल्कुल होना चाहिए? नहीं देखें, किया भी है और करना भी चाहिए। देखें, जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ एक लफ्ज जो है वो मुंसलिक है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। जुडिशियल एक्टिविज्म की हद ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट को ज़हन में रखेंगे। ये जो बात कही जाती है ना कि जजमेंट जो है वो देनी चाहिए चाहे आसमान गिर पड़े, मैं उस जजमेंट को जजमेंट नहीं मानता जिससे आसमान गिरे। आसमान गिरने से तो क़यामत आती है और मैं मरना नहीं चाहता। मैं क्विकली वाइंड अप करने से पहले साद भाई, आपको लगता है कि काबिल कबूल जो हल है वो क्या हो सकता है और क्या जुडिशियल रिस्ट्रेंट होना चाहिए इस पूरे मामले के अंदर? देखिए, मैं भी जो एक अदालती सब्र तहम्मुल है उसका कायल भी हूँ और उसका दाई भी हूँ। मैं समझता हूँ होना चाहिए और मेरा ख्याल हुआ भी है। और मौजूदा अदालती निज़ाम ने इस हुकूमत को उसके स्याह कारनामों और बार बार अदलिया की तज़हीक की कोशिशों के बावजूद काफ़ी वक्त दिया है। आज भी जो 2 हफ्ते दिए गए हैं, अच्छी बात है, दिए गए हैं, लेकिन अब रास्ता इन्हें निकालना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता निकालेंगे, क्योंकि इन्हें तो सियासी शहादत चाहिए और सियासी शहादत लेकर ये सुप्रीम कोर्ट के हाथों अगले इलेक्शन में जाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है अगर अकल प्रिवेल करे, अगर पीपीपी का सीनियर एलिमेंट जो है उनकी बात को ये मान लें, क्योंकि इनकी पार्टी में लोग इन्हें कह रहे हैं, इनकी लीडरशिप को, कि आप मई की बजाय दिसंबर में ले आए इंतखाबात को और केयर टेकर्स अपोजिशन के साथ मशवरा करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह के गैर मुतनाज़ा और ऑनरेबल लोगों को बनाएं, ताकि लोग अपना फैसला दे दें। और वो अवाम का फैसला जो है, जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा, दुरुस्त कहा है, अवाम का फैसला सब मानेंगे, अदालत भी मानेगी, सारी सियासी जमातें भी मानेंगी। बिल्कुल इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए। यास्मीन आपा, आप ऐसा कर सकते हैं, अवाम की तरफ जा सकते हैं, जो वो कह रहे नहीं। देखिए, अभी नहीं लग रहा, इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। अभी कोई ऐसी इमरजेंसी कोई नहीं है कहीं भी। सब इदारे जो हैं वो सब अपना काम कर रहे हैं और मुल्क में टाइम के बाद तो नहीं होंगे ना? टाइम के बाद नहीं होंगे, ये टाइम पे होंगे। और वही इस जमहूरियत का जो है वो उसके लिए इफ्तिखार साहब, आपको काबिल कबूल हल यही लगता है आम इंतखाबात वक्त पे या वक्त से पहले? अब तो क्या पहले जमहूरियत का हामी हूँ, मैं आइन में तयशुदा तरीकाकार का हामी हूँ। आइन में जो कुछ तय हुआ है मैं उसको वेलकम करता हूँ। और काबिल कबूल हल भी यही आपके ख्याल में? जो उससे बाद जो भी फैसला होगा वो बतौर एक शहरी के मुझे पसंद नहीं आएगा, मैं तो इतना कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काबिल कबूल हल निकालना है हुकूमत ने, और हुकूमत ने फैसला करना है कि अब तनाव को कम करना है, दूरियों को मिटाना है, बढ़ाना है, या काबिल कबूल हल के तौर पर अवाम के पास जाना है, क्योंकि आखिरी फैसला अवाम का है, फैसला आपका।